external characters of the living organism is known as external characters of the living organism. That means morphology. Living organism means here you have to study only the plant. That's why external, the study of the external characters of the plant is known as the morphology. Study of external characters of the plant is known as morphology. Study of external characters of the plant is known as morphology. Okay. Next one. Already plant के बारे में हम लोग ज़्यादा we are not taking interest regarding the plant. To study about the animals, we have so much interest. But in case of the study of plants, we are not taking any interest. But you know that plant having the life and lifestyle as well as their life, as well as their habitat, etc. So first of all, we have to study regarding plants. आप इवोल्यूशनरी सीक्वेंस पर अगर देखोगे पहले प्लांट किंगडम, उसके बाद एनिमल किंगडम. ठीक है, तो प्लांट किंगडम एनिमल किंगडम से पहले आया. इवोल्यूशनरी सीक्वेंस में हम लोग किसको देखते हैं? पहले प्लांट आया था या एनिमल? प्लांट. प्लांट किंगडम, प्लांट. तो प्लांट को हम लोग इग्नोर नहीं कर सकते हैं. ठीक है, और ह्यूमन बींग्स और एनिमल्स वी आर डिपेंडेंट ऑन प्लांट्स. खाने के लिए हेटेरोट्रॉफिक, दैट मीन्स कोई भी खाना खाते हो नेचुरली वी हैव टू डिपेंड ऑन द प्लांट किंगडम. ओके, एंड ऑल्सो प्लांट सप्लाइज ऑक्सीजन टू अस. तो प्लांट को हम लोग जनरली इग्नोर करते हैं, बट इट इज नॉट नेसेसरी. दैट मीन्स वेरी क्लियर दैट each and every moment we are depending on the plant kingdom. खाने के लिए हो, ऑक्सीजन के लिए, जो भी है. अगर खाना नहीं मिले, ऑक्सीजन नहीं मिले, एनिमल किंगडम सफा, दैट मीन नॉट एबल टू सर्वाइव. सो दैट्स व्हाई प्लांट किंगडम को पहले हमको देखना है regarding their structure, regarding their habitat, regarding their lifestyle, etc. internal structure, external structure, etc. then animal kingdom. Okay, first of all, plants are different types. Plant, first of all, several times I also discussed that according to their lifespan, lifespan means जो जितना दिनों सर्वाइव करता है, the time, total duration of the life is known as the lifespan. As per the lifespan, plants are three categories. Number one, annual plant. Number one, annual plant. लिख सकते हो annual, ANNUAL, annual plant. Annual plant. The plant which complete their life cycle in one season. The plant which complete their life cycle in one season is known as annual plant. Example, the plants which complete their life span in one season. Their life cycle in one season. One season means 1 year भी हो सकता है, maximum 1 year. ठीक है, एक साल के अंदर में जिसका लाइफस्टाइल, दैट मींस लाइफ साइकिल कंप्लीट हो सकता है, अप टू मैच्योरिटी, फ्लावरिंग एज वेल एज द फ्रूट, सीड्स एटसेट्रा, सब कुछ दे सकता है वो. दैट इज कॉल्ड द एनुअल प्लांट. उसमें कौन कौन हो सकता है आप बताओ तो, एक साल के अंदर में? दैट इज wheat, rice, wheat, maize, रेडिश, टोमेटो और पीज. जितना सारा है एक साल के अंदर में उसका होता है. ठीक है, और एक सीजन के अंदर में उसका रिजल्ट निकल के आता है. ठीक है, अच्छा नेक्स्ट वन, बायनियल प्लांट. बायनियल, those plant which complete their life cycle in two seasons. Complete their life cycle in 2 seasons are called biennials. Biennials, BIENNIALS, biennials.
those plants which complete their life cycle in 2 seasons are called biennials. Example, cabbage. Sir, please repeat the spelling. Biennial, BIENNIAL. Biennial, BIENNIAL. Biennials. Example, cabbage and radish. Cabbage and radish. Number 3, perennials. Perennials, PERENNIALS. Perennials. Perennials, PERENNIALS. 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 Definition: the plant which live for, the plants which live, LIV, the plants which live for a number of years. The plant which live for a number of years. Number of years are called perennials. Are called perennials. Example, mango, neem, etc. Example, mango, neems, etc. These are the 3 types on the basis of their lifespan. Next, on the basis of the height, plants are classified into 3 groups. Write down. On the basis of their height, plants are classified into 3 groups. क्या-क्या 3 groups है? Sir, herbs, Herbs, shrub, and trees. trees. Herbs, shrubs and trees. तो एक concept clear होना चाहिए जब you are studying in the plant king, that means morphology of the plant. Herbs. Number 1, herb. These are small seasonal plants. These are small seasonal plants with soft stem. These are small seasonal plants with soft stem. Example, can you say some example? Hello? Sir, mint. Mint. Grasses. हाथ में आएगा, Amaranthus आएगा, Chenopodium आ जाएगा, जितना weeds वगैरह सब आप इसमें आ जाएगा, herbs में आ जाएगा. उसको हम लोग herbicide बोलते हैं ना, weed को मारने के लिए हम लोग herbicide. So all the plant herbaceous, these are herbaceous plant. That is Amaranthus एक grasses होता है, जितना सारा grasses सब herbs में आ जाएगा. अच्छा, next one, shrubs. 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 These are small size woody plant. These are small sized woody plant. These are small sized woody plants which form the bushy nature, which form the bushy, BUSHY, bushy nature. Bushy nature. Example क्या होगा? Rose. China rose. Jasmine. Rose हो जाएगा, China rose, rose, etc. China rose, rose, etc. Okay. Next trees, generally आपको पता है, these are the plants. These are plants with a stout
with a stout and tall stem. With a stout and tall stem. Branches profusely. Branches profusely. Branches profusely. Example, mango. Next, on the basis of habitat. On the basis of habitat, plants are classified into different groups. Habitat. Number one, xerophytes. Xerophyte means Spelling xerophyte का sir spelling. the plant which are found in the desert area. Sir spelling बताइए ना sir xerophyte. The plants which are present in the Sir, desert area. spelling. Spelling sir xerophyte. क्या sir? XERO, xerophyte. XERO. Zero, XERO. Xerophyte. PHYTE. XERO, PHYTE. Xerophyte. Sir, The thank you. plants which are found in the desert are known as xerophyte. Example, cactus. Sir babool. Bubble, yes. Cactus, bubble, etc. Next one, mesophyte. Sir, एक मिनट सर रुक जाइए सर. Mesophyte. Mesophyte. Okay. MESO, mesophyte. The plants which are found, in moderate climatic condition, are known as mesophyte. Sir, spelling. मेसो, MESO, MESO. बायोलॉजी में स्पेलिंग अगर हमेशा बोला जाए तो तब तो पढ़ाना संभव नहीं है. मेसो आपको या थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा. मेसोफाइट, MESO, mesophyte means the plants which are found in the moderate climatic condition. Example क्या होगा? Sir, Artocarpus. Sir, clover. मैंगो, नीम, ये सब क्या है ना, इसको मेसिक प्लांट बोला जाता है. मेसिक मीन्स ये ज्यादा वेदर नाइदर टू मच ड्राई नॉट टू मच वेट. जैसे पटना ज्यादा ड्राई भी नहीं होता है, ज्यादा वेट भी नहीं होता है. ठीक है, पटना हो गया. इस सब प्लेन लैंड में जितना सारा प्लांट पाया जाता है, दिस आर mesophytic plant. Okay, नीम हो गया, मैंगो हो गया, these are. Next one, lithophytes. Litho, LITHO. Lithophytes mean the plants which are found on the rock. The plants which are found on the rocks. Example कोई बता सकते हो? Anyone? Rocks में पाया जाता है ऐसा कोई plant? Rhododendron. Example, RHODO. Rhodo. Hello. Yes, sir. Yes, sir. RHODO. Rhododendron. Yes, sir. हाँ, रोडोडेंड्रॉन नाम सुना है ना प्लांट का?
नो सर, हमने सुना है। मैंने कही था, नो सर, नहीं सुने। नहीं सुने हैं आप नहीं लोग। रविन्द्रनाथ टैगोर का अगर पोएम ने तो नहीं पढ़े हो, रविन्द्रनाथ टैगोर का पोएम में बहुत रोडोडेंड्रन का कहानी बताया गया। रोडोडेंड्रन का क्या ब्यूटिफिकेशन और सीनरी आता है। रोडोडेंड्रन रॉक सरफेस में होता है। किसी हिली रीजन अक्टूबर नवंबर में जाओगे तो वहाँ पहाड़ का ऊपर में क्या होता है ना, रोडोडेंड्रन का प्लांट इतना होता है तो पहाड़ का पहाड़ी नहीं लगता है, वो एक येलो कलर पहाड़ रखता है। क्यों ना, उसमें इतना फ्लावरिंग होता है रोडोडेंड्रन फ्लावर, और देखने में दूर से इतना खूबसूरत लगता है जैसे जैसे ये ऑरेंज कलर का पहाड़ है, ये हिल है। ठीक है, तो ये रोडोडेंड्रन हिली रीजन में होता है, रॉक सरफेस में पाया जाता है। ठीक है, सर, प्रोफ्यूजली रोडोडेंड्रन, सर रोडोडेंड्रन एक मेडिसिन का नाम भी है शायद। हाँ, रोडोडेंड्रन ये रॉक्स में पाया जाता है। इसीलिए क्या होता है ना, जो कविता लिखते हैं वो लोग का मन में ये सब चीज आ जाता है, साइंटिस्ट लोगों का मन में नहीं आ गया। जो लोग कवि और कविता लिखते हैं वो लोग का मन में सब चीज नेचुरल ब्यूटी उन्हीं का इसमें आ ही जाता है। ठीक है, तो बार बार उस कविता में उनको जितना सारा बहुत सारा कविता में उसका है रोडोडेंड्रन। रोडोडेंड्रन आइडियल एग्जांपल ऑफ लिथोफाइट्स। नेक्स्ट वन, हाइड्रोफाइट्स। हाइड्रोफाइट्स के बारे में तो पता है, जो वाटर में रहता है सर, एल्गी। the water, Yes, sir. the plant which are found in the water, the plants, hydrophytes, the plants which are found in water are known as hydrophytes. Hydrophytes एग्जाम्पल क्या होगा? लोटस, लोटस होगा, वाटर लिली होगा, लिली, वाटर लिली। ठीक है, लेकिन एक चीज है, हाइड्रोफाइट्स में बहुत सारा वेराइटीज है। खाली याद रखोगे, सिलेबस में आपका नहीं है, फिर भी एक बार डिस्कस कर देता हूँ। कोई कोई हाइड्रोफाइट्स टोटली सबमर्ज्ड, सबमर्ज्ड मींस इमर्स्ड, एकदम पानी का अंदर में ही पाया जाता है। कौन कौन है बताओ तो, जो एकदम पानी में डूबा हुआ रहता है? तो हाइड्रिला नाम सुना है? हाइड्रिला, हाइड्रिला, Yes, पिस्टिया, Yes, sir. sir. Yes, sir. हाइड्रिला वेलिस्नेरिया, ये दोनों सर प्लांट क्या होता है? ब्रायोफाइलम हो सकता है। दैट भी इमर्स कंडीशन में। ठीक है, यस। ये हो गया आपका टोटली पानी का अंदर में रहता है। अच्छा, सबमर्ज्ड मतलब आधा पानी में आधा वाटर में। बहुत सारा ग्रासेस भी है। ठीक है, जैसे लोटस आधा पानी में आधा ऊपर में है ना? Yes, sir. हाँ, इसको सबमर्ज बोलते हैं। और एक होता है फ्लोटिंग, फ्लोटिंग फ्री फ्लोटिंग जिसको बोलता है, फ्री फ्लोटिंग, एकदम वाटर का ऊपर में फ्लोट करता है। कौन है बताओ तो? सर The डकवीड, pondweed. वाटर हायसिंथ। Duckweed. वाटर हायसिंथ नाम सुने हैं? Yes, यस sir. सर, हाँ, जलकुंभी हिंदी में बोलते हैं, जलकुंभी। तो उसमें देखोगे अभी रेनी सीजन में वाटर हायसिंथ पूरा भर जाता है, तो जहाँ वाटर लॉक एरिया है वो तो फ्लोट करता है। ग्रीन। हाँ, और भी है लेमना, एक टेरिडोफाइट है लेमना फेलिया, और एक जो एंजियोस्पर्म है आपका वाटर हायसिंथ, वो फ्री फ्लोटिंग, हमेशा वाटर का ऊपर में फ्लोट करता है। हाइड्रोफाइट में भी डिफरेंट कैटेगरी टाइप का है। ठीक है, तो ये हाइड्रोफाइट। नेक्स्ट आप आ जाओगे सेमोफाइट। सेमोफाइट ये सब जानते थे पहले? नहीं जानते थे ना? No, सर sir. सेमोफाइट नया है, सेमोफाइट लग रहा है नया। SAMO, सेमो, पी साइलेंट, सेमोफाइट, PSAMO, सेमोफाइट, PSAMOPHYTE, सेमोफाइट, PSAMO, सेमो पी साइलेंट, सेमोफाइट, सेमोफाइट। Samophyte means plants, the plants found No. in sandy areas. plant found on the sand or in the sand. Plant found
in the sand. मैंने आप पहले बताया था एक बार शायद आपका क्लास में. No sir, ये first time है. The first time है. ये वाला first time है. Which found on the sand or in the sand. क्या होगा एग्जाम्पल? Cucumber, watermelon. Example. Cucumber and watermelon. देखोगे बैंक ऑफ द रिवर में जितना बालू है उस बालू में ये खेती होता है. सर Yes, sir. हाँ, सर एक मस्क मेलन होता है सर, वो क्या होता है सर? वाटरमेलन के साथ ये बोला जाता है सर मस्क Muskmelon. मेलन, वो क्या है सर? वो क्या है सर मस्क मेलन सर? तरबूज. वाटरमेलन का साथ एक Muskmelon, sir. sir. मस्क मेलन. वाटरमेलन Muskmelon. और एक खीरा जिसको बोलते हैं क्यूकम्बर, वो भी पाया जाता है. तो वो पूछ रहा है मस्क मिलन, MUSKMELON, मस्क मिलन. ये क्या होता है सर? इसी का सर वैरायटी. सैंड में जितना जो गर्मी में पाया जाता है ना उस सैंड में, तो उसका नहीं जानते हैं क्या बोलते हैं उसको, क्या हिंदी नेम में क्या है, उसको थोड़ा सा कंफ्यूजन इसमें. तो जनरली जितना सारा तरबूज एकदम दैट मीन्स सन डे में, तरबूज समर जल्दी डे में जो पाया जाता है, ठीक है. अच्छा, मस्क मेलन. अच्छा, ये भी इसमें पाया जाता है. हाँ, मस्क मेलन ये भी इसमें सैंड में ही पाया जाता है, लेकिन इसका हिंदी नाम नहीं पता हमको क्या है. अच्छा, आरेक जिसको बोलते हैं हम लोग काकड़ी बोलते हैं ना, लंबा लंबा होता है. Yes, sir. Yes, sir. Yes sir. जितना है वो सब देखिए सैंड में ही पाया जाता है, ठीक है. और गर्मी का दिन में ही होता है ज्यादा से ज्यादा, ठीक है. अच्छा, ये जो है तो ये हो गया. आरेक लिखो हेलोफाइट, HALO, हेलोफाइट, हेलोफाइट, HALO, हेलोफाइट. हेलोफाइट मींस क्या होता है? The salty region. हाँ, salty, the plant which is found in the salt areas, salty area, or soil, that means saline soil. Saline, SALINE, saline soil are known as halophytes. Mangroves, example mangroves. एग्जाम्पल मैनग्रोव्स, ठीक है. तो इतना सारा हो गया. चलिए, उतना बहुत ही हो गया. नेक्स्ट, आपका जनरली प्लांट अगर जर्मिनेशन होता है, इफ द प्लांट जर्मिनेट, एक सॉइल का नीचे और एक सॉइल का ऊपर में. सॉइल का नीचे दिस इज नोन एज द रूट सिस्टम, और ऊपर में जो होता है शूट सिस्टम, ठीक है. जर्मिनेशन का टाइम से ये होता है. But you know, roots are positively geotrophic and stem are negatively geotrophic. Yes sir. Yes, sir. But exception, biology is a science of exception. Roots हमेशा soil की तरफ जाता है, but so many plants, the roots are positively come out on the surface of the soil. In which plant? Mangrove. Mangrove. Hello? Mangrove. Yes, sir. Sir, mangrove plants. मैनग्रोव प्लांट रूट नीचे नहीं जाता है, रूट ऊपर आता है. क्यों आता है? To respire. नेगेटिवली तो हाँ, जियोट्रॉपिक. yes sir. नेगेटिवली जियोट्रॉपिक. उसमें सॉइल में क्या होता है ना, Sir, soil बहुत salinity- clay होता salinity इतना ज्यादा है, दैट मीन्स ऑक्सीजन, डिजोल्व ऑक्सीजन कंटेंट बहुत कम है. इसी कारण से रूट्स आर नॉट एबल टू रेस्पायर विद इन द सॉइल, muddy soil. Okay, so that's why the roots come out vertically on the surface of the soil, and this special type of roots are known as the pneumatophore. और रूट्स का सरफेस में बहुत सारा पोर होता है, जिसका थ्रू से वेंटिलेशन और एरेशन होता है, डायरेक्ट वेंटिलेशन. हम लोग जानते हैं जो ऑल द लिविंग सेल्स हैविंग द रेस्पिरेशन, ओके, और द रेस्पिरेशन एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस, so that's why roots come out vertically on the surface of the soil. So this special type of roots are known as the pneumatophore. So plant having the root system and shoot system.
पहले लिखोगे रूट सिस्टम क्या है, व्हाट इज रूट सिस्टम। 3 टाइप होता है रूट सिस्टम, पहले लिखिए रूट सिस्टम 3 टाइप्स, 3 टाइप्स। नंबर 1 टैबरूट सिस्टम, second one fibrous root system, and third one adventitious root system, adventitious root system। टैबरूट सिस्टम क्या होता है ये तो जानते हो, इसको बोलना दिखाना अथवा टाइम वेस्ट करना ठीक नहीं है। टैबरूट सिस्टम होता क्या है, व्हाट इज टैबरूट सिस्टम। सर एक Hello? मेन रूट होता है जिसमें से सब्सिडियरी रूट्स निकलता है। No, here the radical part of the radical part continue to grow primary root, radical part continue to grow as primary root, it is characteristics of dicot plant। सर क्या रिपीट कर दीजिए सर एक बार। सर डाइकॉट्स। हाँ, रिपीट radical कर दीजिए। continue to grow as primary root and from the branches and form the branches। रेडिकल और प्लिंगुल जर्मिनेशन का टाइम में 2 पार्ट होता है, एक प्लिंगुल जो ऊपर में जाता है और नीचे रेडिकल जो व्हाइट कलर का होता है। लेकिन वो रेडिकल पार्ट नीचे सॉइल में जाता है तो उसको सीधा सॉइल में जाता है और उसमें बहुत सारा ब्रांच निकलता है, और दिस इज नोन एज द टैपरूट सिस्टम, और दिस इज कॉमन इन डाइकॉट प्लांट। नेक्स्ट वन फाइब्रस रूट सिस्टम। फाइब्रस रूट सिस्टम, when the taproot is replaced by the hair-like roots, hair-like HIR, hair-like roots, then it is called the fibrous root system. Then it is called fibrous root system. It is characteristics of मोनोकॉट। मोनोकॉट में भी पर्टिकुलरली सीरियल्स में होता है, ठीक है, मोनोकॉट। नेक्स्ट एडवेंटिशियस रूट। एडवेंटिशियस रूट, एडवेंटिशियस रूट का बारे में लिखोगे व्हेन द रूट्स अराइज फ्रॉम any part of the plant, other than radical, then they are called adventitious root. Adventitious root। एक एग्जांपल दे सकते हो एडवेंटिशियस रूट का? शुगर केन, सर बैनियन। सर banyan tree। बनियन ट्री। सर एस्पेरेगस।
मैरीगोल्ड फ्लावर किसी में घर में है तो देखोगे रूट नहीं स्टेम से निकलता है कुछ कुछ रूट लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है, वो जाके सॉइल में फिक्स हो जाता है। अगर वो उसका स्टेम उतना स्टाउट नहीं होता है जो खड़ा हो सकता है, लेकिन कभी कभी अगर बेंडिंग हो गया तो उसको सपोर्टिंग सिस्टम में उसको रोड निकाल जाता है, सॉइल में जाके फिक्स हो जाता है। दिस आर कॉल्ड एडवेंटिशियस रूट। स्टेम से निकालता है, रेडिकल से नहीं, वो स्टेम से ही आ जाता है, ठीक है। बेनियन में भी आता ही है, तो ये एडवेंटिशियस रूट में काम, दैट दिस आर नोन एज द एडवेंटिशियस रूट। एडवेंटिशियस बर्ड्स के हेल्प से ना। अच्छा, नेक्स्ट वन, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द रूट। जनरल characters of the root. General characteristics root. Root does not show any nodes and internode. Root does not show any nodes and internodes. Roots में nodes internodes नहीं मिलेगा. Does not show any nodes and internodes. Next one, they are positively geotropic. Positively geotropic. Next one, roots are normally present in the underground. Roots are normally present in the underground. Normally present in the underground. And these are non-green. These are non-green. Non-green. Potato stem या root? Hello. The stem. The root. Potato is the Root. stem. Potato is a stem. बहुत सारा प्रूफ है, नंबर ऑफ प्रूफ। पोटैटो में नोट्स पाया जाता है। हेलो, नोट्स, आंख लाइक, दैट मींस जिसको आंख बोलते हैं, जिसमें इसमें होता है ना पोटैटो का ऊपर में, दीज आर नोड्स एंड इंटर नोड्स। आई टाइप का लेकिन रूट पे तो नहीं है नोट्स एंड इंटर नोड्स। अभी पोटैटो मार्केट से लाया जाता है तो ग्रीनिश कलर होता है। देखिए किसी किसी पोटैटो का ऊपर में ग्रीनिश कलर होता है। ग्रीनिश कलर किस में होता है? स्टेम में होता है या रूट में होता है? Stem में। स्टेम। बहुत सारा प्रूफ है जो पोटैटो इज अ स्टेम। लेकिन सर ठीक उसमें है। कंट्रास्ट भी तो करता है, जैसे अंडरग्राउंड नेचर तो नहीं, आप इसीलिए इस stem होता चैप्टर है। को तो पढ़ना है, बहुत सारा इसमें कंफ्यूजन है। लेकिन वही अगर पोटैटो इज ए रूट बट स्वीट पोटैटो इज ए स्टेम, पोटैटो इज ए स्टेम बट स्वीट पोटैटो इज ए रूट। कंफ्यूज नहीं होना है। स्वीट पोटैटो एक लाल जो होता है जिसको शकरकंद Yes, बोलते हैं, sir. लाल टाइप का है, वो रूट है। बट पोटैटो इज स्टेम। देखिए उसका नाम भी स्वीट पोटैटो, ये भी पोटैटो है, बट पोटैटो हो गया आपका स्टेम, स्वीट पोटैटो हो गया रूट। ठीक है, ऐसा बहुत सारा इस चैप्टर में कंफ्यूजन। जैसे एप्पल फ्रूट नहीं है। हेलो, Yes, यस sir. सर। Yes, sir. आप किसी जगह इंटरव्यू देने के लिए जाओगे, if you face an interview, अगर मान लीजिए इंटरव्यू बोर्ड में आपको पूछा जाए either apple is a fruit or not, आपको जवाब देना it is not a fruit, it is false fruit। ठीक है, marigold is a flower or not? Marigold is not a flower, it is a collection of the flower, it is inflorescence। हजारों फ्लावर इकट्ठा होता है उसमें। ठीक है, तो ऐसा बहुत सारा कंफ्यूजन इस चैप्टर में आपको मिलेगा। ठीक है, तो ये इसीलिए इस चैप्टर को पढ़ना है। और मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इस चैप्टर से बहुत क्वेश्चन आता है। ठीक है, मेडिकल एग्जामिनेशन में मॉर्फोलॉजी ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट्स
से बहुत क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन आता है, दैट मीन्स बहुत ही क्वेश्चन आता है इसमें, इस चैप्टर से। तो इस चैप्टर को एकदम थोरोली अच्छा से पढ़ना भी है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट फंक्शन ऑफ ना, आज तो टाइम इज ओवर। फंक्शन ऑफ रूट सिस्टम, जनरली बहुत सारा फंक्शन भी है, ये सब अभी इजी है। बाद में रीजन ऑफ द रूट्स, ये चीज थोड़ा सा देख लेना है आप लोग। हाँ, फंक्शन ऑफ रूट सिस्टम, रूट का क्या क्या फंक्शन है, रीजन्स ऑफ द रूट, रूट का क्या क्या, एक इलोंगेटेड जोन होता है, एक रीजन ऑफ इलोंगेशन, रीजन ऑफ मैच्योरेशन, रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी, ये सब है। ये 3 पार्ट में एनसीईआरटी में डायग्राम भी है, उसको देखना है, ठीक है। तो ये जनरली ये चीज 3 पार्ट्स में ये। तो रूट का जो फंक्शन है, पहले तो